So we start with chapter 5, that is discrete time Fourier transform. We have already stated that Fourier transform is used for the analysis of stable systems. Transform can be taken for both periodic as well as aperiodic signals. Number and omega represents frequency or the imaginary part as well. So we say where z is represented in the polar form. So now we say from convolution output equals to the input convolved with impulse response. So for convolution equation, y of n is summation h of k into x of n minus k. By simplifying this equation, we said output equals to z power n into summation h of k z power minus k. So here we say that output is equal to the same input multiplied with h of z, which is summation h of k z power minus k. So if you remember, so we call this h of z as the eigenvalue. Okay? So with the z equal to z, we say it also represents the z transform, which will be discussed in chapter number 10. So similarly, for discrete time systems with input of the form a k z k power, and means input is a linear combination of inputs, where zk represents the complex number, kth complex frequency generally we say. So if this is the input, then output of this system will be summation k a k h of z per k z k power, and ये हम Fourier series में पढ़ चुके हैं, ठीक? So we say that y of n is summation a k h of z k power, and so output is only scaled a k is into h of z k. So if this is the input of the LTI system, then output of that LTI system is equal to summation a k is into h of z k power, and the zk basically represents the kth complex frequency. So here we start with the Fourier transform. So just now, as we said, h of z is equal to summation n from minus infinity to plus infinity h of n z power minus n, as z is equal to r e power j omega. So here we assume that r is equal to 1. तो अगर हम r को 1 लें, ठीक है, as we have already said that x of n is equal to z power n, and if we say z is equal to r e raised to the power j omega, तो फिर x of n क्या हो जाएगा, r power n e raised to the power j omega n. Then it depends on the value of r, whether input will be bounded or unbounded, because we say r power n is a real exponential with a base r. तो अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, r की वैल्यू 1 से कम होगी then it will be a decaying exponential. But here we don't know what is r, so we say for r simplification we say assume that r is equal to 1. ठीक, जब जब चैप्टर नंबर 9 10 हम पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म यूज होगा region of convergence. So in that case we have to specify the value of r, that for which value of r the transform will be converging. ठीक है, जब transform converge होगा तो इसका मतलब its inverse will also exist. So here we say r is equal to 1 as a special case. So with z, assume that r equals to 1, then z is equal to e raised to the power j omega, and the same equation can be rewritten as h of e raised to the power j omega equals to summation n from minus infinity to plus infinity h of n e raised to the power minus j omega n. So generally we call this equation, इसके भी continuous की तरह different नाम है. We can also call it as the eigenvalue of the system. We can also call it as the frequency response of the system, discrete frequency response of discrete time system. And we also say it is the Fourier transform of the impulse response of system. So अगर आप representation में differences compare करें with chapter number 4, that is continuous time Fourier transform,
तो वहाँ पे था h of j omega. Here the representation is h of e raised to the power j omega. In that case it was integration h of t e raised to the power minus j omega t dt. तो यहाँ पे h of n represents a discrete signal. So we said is summation n from minus infinity to plus infinity h of n e raised to power minus j omega n. So we call it as the Fourier transform of the impulse response. Can also call it as the eigenvalue, or we also know it says the frequency response of the discrete time LTI systems. So if you remember from some previous lecture, chapter number 3 के end में था filtering, when we were discussing the ideal filters, continuous time ideal filters and discrete time ideal filters. तो उसमें एक मेन डिफरेंस था बिटवीन कॉन्टिन्यूस टाइम फिल्टर एंड डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स. किसी को याद है डिफरेंस? बता सकते हैं एनालॉग फिल्टर में और डिजिटल फिल्टर में मेन डिफरेंस क्या था? वाइवा का क्वेश्चन है. सुन रहे मुझे कि नहीं? यस सुन सर. रहे हैं पर याद नहीं है सर. क्या याद है? याद नहीं आ रहा? सर एनालॉग कंटिन्यूअस होता, मतलब एनालॉग कंटिन्यूअस होता है और डिजिटल डिस्क्रीट. ठीक है, डिफरेंस क्या है अदर देन दैट विद रेफरेंस टू ओमेगा, विद रेफरेंस टू फ्रीक्वेंसी? सर जो डिस्क्रीट होता है वो हमारे पास मतलब इंटीजर वैल्यूज पर डिफाइन होता है ना, जबकि कॉन्टिन्यूस जो है वो पॉइंट में फ्रैक्शंस में भी डिफाइन होते हैं. नहीं, ओमेगा देखिए की ये सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं. कॉन्टिन्यूस में लो फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, जबकि डिस्क्रीट में हाई फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं और लो कौन सी हैं? चलिए बता दें. डिस्क्रीट फिल्टर्स में या डिस्क्रीट सिस्टम्स में what are the low frequencies and what are the high frequencies in case of discrete? सर जो ऑड मल्टीपल है वो डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज हैं. Odd multiple of what? पाई Pi. और जो even multiples हैं they are लो so डिस्क्रीट they are टाइम. low frequencies. तो अगर आप इसी से डिफरेंस बता सकें continuous टाइम फिल्टर का और डिस्क्रीट टाइम फिल्टर का. सर मतलब हमारे पास वो जो 2 पाई पीरियड में डिफाइन होता है और कंटिन्यूस टाइम मतलब इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी तक वो उनका टाइम पीरियड डिफाइन है. Continuous के केस में we say with reference to frequency आपके पास जो bandwidth है we generally say it is from 0 to infinity, where in case of discrete time it repeats after every 2 pi. So for the analysis purpose, in case of discrete time filters, a bandwidth of 2 pi is used only. Because we say after 2 pi it repeats. Let's come back to this question. तो आपके पास जो discrete time filters आप कह सकते हैं कि they repeat after every 2 pi. Whereas continuous time filters does not repeat. So अगर आपके पास सिग्नल x of n है तो we say its Fourier transform will be represented by x of e raised to the power j omega. Small case letter is converted into capital case and e raised power j omega then represents the discrete time representation. Continuous में क्या था? It was x of j omega. So similarly x of e raised power j omega will be given as x of n e raised power minus j omega n. ठीक, इस इक्वेशन का क्या नाम होगा अदर देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n? एनालिसिस इक्वेशन. एनालिसिस इक्वेशन. और दूसरी क्या थी? सिंथेसिस इक्वेशन क्या थी? सर वो टी के लिए सॉरी वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जोड़ना टर्म्स के लिए जो इसका इन्वर्स है. ठीक है, इन्वर्स के लिए इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो उसके लिए मैं बुक खोल देता हूँ.
इसमें आपसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, जिसके लिए मैं ये सारा खोल रहा हूँ। इनवर्स की इक्वेशन आप बुक से इजीली देख सकते हैं। प्लीज़ एनालिसिस इक्वेशन ये गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। So its analysis equation is summation x of n e raised power minus j omega n x of e raised power j omega. इसका जो इनवर्स है x of n is 1 over 2 pi integral 2 pi x of e raised to power j omega e raised power j omega n d omega. इंटीग्रल की लिमिट्स देख लें तो 2 पाई है। क्यों 2 पाई है? Because we say Fourier transform x of e raised power j omega is defined for a 2 pi interval. मुझे कोई क्वेश्चन का जवाब दें कि यहाँ पे इंटीग्रल क्यों यूज हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि जी एक्स ऑफ एन इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड टू टेक इनवर्स राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल क्यों है? सर जो एक्स ऑफ जे ओमेगा है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है। अगर हमारे पास मतलब फिर पीरियाडिक ए पीरियाडिक फंक्शन है तो उसका जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है वो कंटिन्यूस होता है डिस्क्रीट टाइम के लिए। ठीक, बाकी लोगों के लिए मैसेज है, नोमान साहब से डर जाएं थोड़ा सा। चलें ठीक है ना, फिर भी बता रहा हूं। मुझे नहीं पता नोमान की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है with reference to GPA, but still he is doing good in this course till date. पेपर का मुझे नहीं पता क्या होगा। So shortly we say x of n is equal to 1 over 2 pi integral 2 pi x of e raised power j omega e raised power j omega and d omega. तो जब आपको इसको इंटीग्रेट करना है with reference to omega, so omega in this case is continuous because we say x of n represents a periodic signal. अगर x of n periodic signal होगा तो फिर इक्वेशन डिफरेंट यूज होगी, ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूस में भी थी, समेशन की फॉर्म में थी। So then you can say we will use the term summation. Come back to the original thing. So x of n is a transform x of e raised power j omega, y of n का transform क्या होगा, y of e raised power j omega, h of n का transform h of e raised power j omega, z of n का transform क्या होगा, z of e raised power j omega. The second is convergence of Fourier transform. तो इसमें भी convergence में मेन एक ही चीज़ है कि your system, sorry, your time domain signal must be a energy signal, और अगर वो power signal है तो then it has to be periodic, ठीक है, means area under the curve must be finite. अगर वो periodic है तो within one period भी उसका area under the curve finite होना चाहिए। अगर वो aperiodic भी है तो it should be a energy signal और even power signal. अगर एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है तो उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उसका इन्वर्स भी हो। अगर इन्वर्स नहीं है then that transform is not valid, so you cannot use that for the representation of any type of systems. So here we start with few examples. Let's say the first example, इस पे सॉल्व किया, इस पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने पेजेस पे करके उनके इमेजेस लगा दिए। So here we say x of n is a power n u of n. Continuous में क्या था, e raised power minus a t u of t. So here we say magnitude of a is less than 0. So if magnitude of a is less than 0, then only this will be a bounded signal. अगर a का magnitude 1 से होगा then this will be unbounded. So when it is unbounded then its transform does not exist. ठीक है, अगर ये bounded है then its transform will exist. So here we say using analysis equation to find the Fourier transform of x of n. So equation is summation x of n e raised power minus j omega n. X of n को replace कर दें a power n u of n से. We can rewrite this as the u of n से limits क्या हो जाएंगी n from 0 to infinity a power n e raised power minus j omega n.
So we say base same powers are added of, or if powers are same then bases are multiplied. This can be rewritten as a e raised to power minus j omega power n. So here we say magnitude of this term is less than 1, then this will converge. तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि a का मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए. जब a का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा तो ऑटोमेटिकली इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा. So we say this is a geometric series और इसकी लिमिट्स क्या हैं फ्रॉम 0 to infinity. So we will be using the equation for the sum of infinite geometric series जो कि आपको याद होगी. ठीक है. उस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फार्मूला क्या है? एक्स ऑफ ई रेस पावर जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/1 माइनस ए ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा फॉर ए लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, सॉरी यहाँ पे टर्म करेक्शन है ए लेस देन 1. So we know that for every complex function there are two parts, magnitude and phase. So to find the magnitude, we use a general equation that is a function multiplied with its conjugate and then square root. We generally magnitude square equals to a function multiplied with its conjugate. अगर हमें सिर्फ magnitude find करना है तो we take square root both sides. So magnitude of any complex number equals to a complex number multiplied with its conjugate. तो आपके पास फंक्शन क्या है 1/1 माइनस ए ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा. प्लीज़ ये क्वेश्चन जब भी मैं क्लासरूम में स्टूडेंट से कहता हूँ, आप तो ऑनलाइन चल रहे हैं यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा, कि जी इसको सॉल्व करके दें, मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके दें. इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स मैक्सिमम आर अनएबल टू सॉल्व इट. बट शॉर्टली वी से यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी दिस कैन बी रीरिटन एज 1 माइनस ए कॉज ऑफ ओमेगा प्लस जे ए साइन ऑफ ओमेगा. आपने इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस ए कॉज ऑफ ओमेगा माइनस जे ए साइन ऑफ ओमेगा. जी मल्टीप्लिकेशन है ना, ये फंक्शन है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इसको वो रैशनलाइजेशन होती है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. ठीक है, कि आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, वो भी आगे इसी एग्जांपल में हो रहा है टू फाइंड फेज. बट जनरली टू फाइंड कॉन्जुगेट वी स्ट्रेट अवे यूज दिस इक्वेशन. दिस मतलब दिस सेविंग ऑफ टाइम सेविंग है और कुछ भी नहीं है. अदरवाइज आप उस तरह भी कर सकते हैं कि रैशनलाइज करें, रियल पार्ट अलग करें, फेज पार्ट को अलग करें. फिर मैग्नीट्यूड क्या होता है? रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वही चीज़ है. ठीक है, शॉर्टकट है इसका. So this is 1/1 minus a cos omega plus j a sin of omega multiplied with 1 minus a cos of omega minus j a sin omega. तो यहाँ पे आइलर्स आइडेंटिटी यूज हुई है. ठीक, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस थिंग, ये दोबारा वही चीज लिखी हुई है. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे a का टर्म क्या होगा 1 माइनस ए cos ओमेगा. So 1 minus a cos omega whole square minus j a sin omega whole square. ठीक, so 1 minus a cos omega whole square minus j a sin omega whole square. तो j equals to j square equals to -1. ठीक, तो यहाँ पे आप स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें. 1 plus a cos omega square minus 2a cos omega माइनस है यहाँ पे, तो j square will be -1, तो माइनस माइनस प्लस a sin of omega whole square. Using identity, कौन सी identity? cos square omega plus sin square omega equals to 1. तो a square cos square omega plus a square sin square omega. तो अगर आप a square कॉमन लें, identity को यूज़ करें, तो this will be left with 1/1 plus a square minus 2a cos omega. ठीक,
ये आपके पास मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है और सर सर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हुए हम यूं कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रही है ना, तो एक जो शॉर्ट मेथड है उससे भी इसी तरह यही रिजल्ट आता है आउटपुट में, कि हम जो नॉन इमेजिनरी जो रियल टर्म है उसका स्क्वायर ले लें, और जो जी इमेजिनरी टर्म है उसका साइन वही रहने दें, और जे के अलावा जो टर्म है उसका स्क्वायर ले लें और उसको हाँ, फिर सिंप्लीफाई कर दें। तो मुझे बता देना अगर आप वो काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यस। यहाँ पे तो इक्वेशन डबलिंग में लिखी गई है। ठीक है, एक स्टेप क्या है, ये फंक्शन गिवन है, इसको आपने आइलर्स आइडेंटिटी अप्लाई की तो 1 माइनस ए कॉस ओमेगा प्लस जे ए साइन ओमेगा, सिंपली इसी को मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट से और फिर स्क्वायर रूट लें। ठीक है, अगर जो जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ तो सर ये स्टेप भी जो है एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा था। चले वो जो आपको आसान लगे, दोनों चीज़ें सेम है, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, यस। मुझे ये चीज़ आसान लगती है फॉर एनी गिवन फंक्शन, आपको वो आसान लगता है आप उस तरह कर लें। ठीक है, ओके सर, वो भी थैंक किया यू हुआ सर। है मैं उसके लिए फेज के लिए। ठीक, so we ended up with the equation 1 over 1 plus a square minus 2a cos of omega. ठीक, similarly phase response is given by the equation। आप उस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लें कि ये आपके पास फंक्शन है 1 over 1 minus a raised power minus j omega, इस पे आइलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करें तो दिस विल बी 1 over 1 minus a cos omega plus j a sin omega। फिर इसको रैशनलाइज कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रियल एंड इमेजिनरी, सॉरी, रैशनलाइज मींस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। फिर रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें, then tangent square of imaginary part by real part gives you the phase। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये किस टाइप का सिग्नल होगा, will it be a low frequency signal or will it be a high frequency signal। ठीक, so it depends on the values of a। तो अगर मैं इसी चीज़ को मैटलैब में प्लॉट कर दूं, जी वहाँ पे जहाँ पे पड़ी थी उस पर राइट क्लिक किया, उसने क्या कॉपी कर, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, आपके पास तो नहीं खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी, आपके पास नहीं खुलेगा। जी
सर हमारे पास इसका सोर्स लिंक ही नहीं है, आपके तो पास हम कैसे ओपन करेंगे? नहीं है, ठीक है। आपके पास ये फाइल नहीं खुलेगी, मैंने अपने लेक्चर के लिए लिखी हुई है। कहीं ऐसा ना हो आप नोट्स बाद में खोलेंगे, सर वो फाइल नहीं खोल रही थी तो हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो आपके पास ये फाइल है ही नहीं तो खुलेगी कहाँ से? ओके, प्लीज़ इसके सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। यहाँ पे मैं ओमेगा को से एज्यूम कर रहा हूँ -10 से +10 तक, ए की वैल्यू में ले रहा हूँ -0.5। चले फर्स्ट गो फॉर +0.5। फंक्शन क्या था मेरे पास? x was 1 divided by 1 minus a e raised to the power minus j omega, ठीक है। सब प्लॉट 2 1 1 ओमेगा, प्लॉट एब्सोल्यूट पार्ट एंड देन प्लॉट एंगल। तो अगर आप इसको प्लॉट करें एंड यू लुक इनटू दैट, इसमें कोई टाइटल नहीं है, कोई लेबल नहीं है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है विच इज इक्वल टू 2, एंड देन द सेम रिपीट्स एट विच वैल्यू? 6 के बाद है। ये कौन सा पॉइंट बनेगा? 2 पाई। 2 पाई, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पाई को वो ऑटोमेटिकली ले रहा है 3 पॉइंट जो भी वैल्यू होती है उसकी। What type of this signal is? लो पास। लो Low क्या? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो पास का टर्म आप उस वक्त यूज करेंगे जब ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। so, अगर यही इम्पल्स रिस्पॉन्स का ट्रांसफॉर्म लें, वो ये चीज बने, देन वी से इट इज अ लो पास फिल्टर, but here we say it is a generally a signal x of n, so for that we say it is a signal, so generally we say it is a low frequency signal। अब फेज में अगर आप देख लें तो we say कि जी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हैं, are they in phase, they are out of phase, उनका phase difference 90 डिग्रीज का है, phase difference 20 डिग्रीज का है, तो आपको इस phase response के इक्वेशन से मिलता है आंसर, ठीक है। बाकी लेबलिंग टाइटलिंग करें तो इसका रंग रोगन हो जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन यूज हुई है टू फाइंड phase डिफरेंट। मैटलैब में जाके क्या करें? ए पॉजिटिव था, ठीक है। ए के नेगेटिव से क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे जनरली जुबानी बता दें, तो बता सकता है नेगेटिव, ए को नेगेटिव करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कहाँ पे क्रोइंग था? क्रोइंग तो नहीं है, पीरियोडिक है जी। अगर ए को माइनस कर दें, फ़र्क क्या पड़ना चाहिए? वैल्यूज और कम हो जाएंगी इसकी। प्लस माइनस से जनरली क्या, प्लस माइनस से जनरली क्या डिफरेंस पड़ता है? से नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म बड़ी हो जाती है ना, +1 हाँ का डिफरेंस आता है, ठीक तो है। सर उससे एक हमारे पीरियोडिक पास हो जाएगा। कम वैल्यू आती है होल फंक्शन की किसी तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट पर। मतलब जिस पॉइंट पे पहले हम वैल्यू मैक्सिमम थी, अब उसी पॉइंट पे वैल्यू उल्टी हो जाएगी ना, ठीक है। मतलब अगर पहले ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे अभी मैक्सिमम है, ठीक है, और ये मिनिमम कहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे लोकेट करें, दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग, तो मिनिमम पॉइंट कौन सा बनता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज? पाई पाई, ठीक है। जो मिनिमम पॉइंट यहाँ पे बन रहा है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू पाई, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कि पाई और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, जबकि जीरोस 2 पाइज और इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, सो दैट्स व्हाई वी से इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब जब आप एक को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, मींस प्लस से माइनस हो जाएगा, तो फिर जिन फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीट्यूड्स मैक्सिमम थे, अब उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, और जिन फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीट्यूड मिनिमम था आफ्टर मतलब साइन चेंज करने से, कांस्टेंट का साइन, तो उन पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इक्वेशन देखें तो क्या थी,
x of n is a power n, my value थी, now we say it is minus, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर आपको यही आंसर मिलता है 1/1 माइनस ए ई रेज़ टू द पावर प्लस जे ओमेगा, बट ए इज नेगेटिव, ठीक है इस इक्वेशन में। तो ई रेज़ पावर प्लस जे ओमेगा क्या मतलब होगा, देयर इज अ 180 डिग्रीज शिफ्ट इन द ओमेगा। तो अगर आप ओमेगा में 180 डिग्री फेज शिफ्ट करें तो क्या होना चाहिए, मीन्स जो वैल्यू 0 पे थी नाउ इट विल बी शिफ्टेड टू पाई। एक्स एक्सिस पर मिरर हो जाएगा सर साइकिल। मिरर नहीं है, ठीक है, जो वैल्यू पहले 0 पे थी, ठीक। अब चलो मैं इसको ज़रा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, प्लॉट कर दूँ दोबारा से। लेट्स से इसको मैं b कर दूँ, b इक्वल्स टू -0.5 प्लॉट make it 3 1 1 3 1 2 3 1 3, ठीक है। So instead of सर 313 होगा लास्ट वन। x की जगह मैं इसको y कर दूं, 1 minus a e raised to the power j omega, instead of a make it b, and then 3 1 3, then it is abs y, ठीक है। होप सो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब सेंटर वाली फिगर को छोड़ दूं मैं, अगर लेट्स से प्लॉट एंगल को हटा दें, सर 312 करेंगे तो उसको खत्म करेगा। चलो ठीक है, छोड़ दें, काफ़ी है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें फ़र्क सिर्फ क्या था, एक में ए पॉजिटिव है, दूसरे में ए नेगेटिव है। क्या फ़र्क पड़ा है कि जो पहला वाला सिग्नल है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इट इज़ शिफ्टेड 180 डिग्रीज टू द राइट और लेफ्ट, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है। तो अगर आप इसको 180 डिग्री शिफ्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू 0 पे मैक्सिमम थी अब वही वैल्यू 0 पे मिनिमम है, पाई पे जो वैल्यू पहले मिनिमम थी अब वही वैल्यू पाई पे मैक्सिमम है। तो डिफरेंस क्या बने दोनों में, अगर ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वन, High frequency signal. हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस वन रिप्रेजेंट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी। सो शॉर्टली आप इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टेड पाई यूनिट्स टू द अदर साइड, ठीक है, 180 डिग्री उसको शिफ्ट करें, फेज शिफ्ट करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आइदर साइड लेफ्ट और राइट, बिकॉज इट इज पीरियोडिक, तो पीरियोडिक से लेफ्ट राइट फर्क कोई नहीं पड़ता जी। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में या डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स में लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी मींस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ओमेगा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे उसका एम्पलीट्यूड है। तो डिस्क्रीट के केस में लो फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं जी, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। प्लीज जो शायद आपको भूल गया, लैब नंबर 2 आपने की भी थी, उसमें सारी डिटेल्स थी कि लो फ्रीक्वेंसीज आर अराउंड 0 वेरी जनरली,
लेकिन जब आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो लो फ्रीक्वेंसीज आर अराउंड 0 एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई बिकॉज इट्स पीरियोडिक। जब वो पीरियोडिक है 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो 0 पे भी लो फ्रीक्वेंसीज हैं और फिर 2 पाई पे भी लो फ्रीक्वेंसीज हैं। सो 0, 2 पाई, 4 पाई एंड अदर वैल्यूज, दे रिप्रेजेंट द लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। और हाई फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं जिस पे रेट ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा? So for that we say omega is equal to pi. It is periodic with 2 pi. So pi plus 2 pi is 3 pi plus 2 pi becomes 5 pi. So odd multiples of pi पे we say they are the high frequencies. तो अगर आप इस पहले सिग्नल को देख लें, as it is periodic with a period 2 pi, तो हायर एम्पलीट्यूड्स किन फ्रीक्वेंसीज के लिए हैं? सो ओमेगा इज इक्वल टू 0 इज द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, देन इट डिक्रीजेज अप टू पाई, ठीक है, और पाई पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, अगेन आफ्टर पाई इट इंक्रीजेज एंड इट इज मैक्सिमम एट 2 पाई अगेन। सो अगर आप इस फिगर को देख के कहते हैं तो वी से दैट लो फ्रीक्वेंसीज जो हैं उस पे एम्पलीट्यूड्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू हाई फ्रीक्वेंसीज। सो वी सेड इट रिप्रेजेंट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जबकि दूसरे पार्ट में देख लें तो जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं विच आर अराउंड 0 एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, तो 0 पे जो वैल्यू वैल्यू है वही आपको 2 पाई पे मिल रही है, और जो पाई पे वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम। सो हियर वी से जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं पाई के अराउंड, उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसीज एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड 2 pi and other even multiples of 2 pi. So shortly we say the second one represents a high frequency signal and the first one represents a low frequency signal. Okay, लो और हाई का मतलब इस सिर्फ ये है कि जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं अगर उन पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होंगे तो वी से इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अगर हाई फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो वी से इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर? Yes. Come back to this thing. So we have done with the plotting of this thing. अभी मुझे नहीं पता है दूसरा प्लॉट किस चीज़ का है। ये भी एक और सॉल्व एग्जांपल है, चलिए इसको अभी देख लेते हैं, पहले नोट्स में देख लें। अब प्लीज़ कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं बुक से, बुक में थोड़े से शॉर्टकट्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पे मैंने उनको डिटेल में किया था कि आपको मेन चीज़ इस कोर्स का फोकस भी यही है कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स एनहांस हों as with reference to this course. So we say a signal is given as x of n equals to a power n absolute. Again we say magnitude of a is less than 1. It says find its transform using analysis equation. So x of e raised power j omega analysis equation है. So x of n is a power n magnitude. तो यहाँ पे इसके दो टर्म्स हैं, अगर आप इसको ओपन कर दें, a power n when n is greater than or equal to 0, and this will be a power minus n कब? when n is less than 0, ठीक है। अगर आप इसको प्लॉट करते हैं इसी सिग्नल को तो आपके पास ये चीज़ बनती है, n इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 1। अब एब्सोल्यूट कह रहे हैं वो, तो n इज इक्वल टू प्लस 1 पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू आपको n इज इक्वल टू माइनस 1 पे, जो वैल्यू n इज इक्वल टू प्लस 2 पे वही वैल्यू n इज इक्वल टू minus 2 पे. So it is an even function. On either side it will be decreasing. So if n approaches to plus infinity तब भी ये 0 आएगा, if n approaches to minus infinity फिर भी ये function 0 है, ठीक है। Mathematically we say it is a power n for n greater than 0, ठीक है। अब a का magnitude 1 से कम है तो automatically we say it is decaying, and it is a power minus n when n is less than 0. अब n less than 0 means n is negative. जब n negative है तो minus minus will become plus. So again, and a is less than 1, again it will be a decaying, means n का magnitude अगर ज़्यादा होगा
तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये हमने कॉन्टिन्यूस में भी किया था। तो अब इसी को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, कम्पैक्ट फॉर्म में दोबारा, ए पावर एन यू ऑफ एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस ए पावर माइनस एन, एन लेस देन 0 के लिए इसको मैं u की फॉर्म में लिखूं, स्टेप फंक्शन, तो वो लिमिट्स क्या बनेंगी, फॉर n लेस देन 0, इंटीजर है तो जनरली वी से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, तो ये लिमिट्स क्या बनेंगी, दिस विल बी u ऑफ माइनस n -1, हम ये कह रहे हैं ना n लेस देन 0, तो n लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, so generally we say from minus infinity to -1. So in terms of unit step function, this will be u of minus n minus 1. तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है x of n is a power n absolute, तो इसको अगर आप ओपन करते हैं with the help of unit step signals, तो this is a power n u of n plus a power minus n u of -1. यहाँ तक क्लियर है? जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी हेलो जी जी सुन रहा हूँ। सर, वो आपने दो प्रॉपर्टीज छोड़ी थी कि वो आप इस क्लास में कराएंगे, फिर चैप्टर 5 कराएंगे, आपने तो वो नहीं कराई। वो एक मल्टीप्लिकेशन एक डुअलिटी है, दोनों की इंशाल्लाह आज करा दूंगा। ठीक है सर। सर और हमें सिग्नल को मल्टीप्लाई करना भी सिखाए साथ में। मल्टीप्लाई करें ना पॉइंट बाय पॉइंट। सर और वहाँ पे सर हम ऐसे करते तो ग्राफ मैच नहीं होता हमारा। होना तो चाहिए, चले कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है, मैटलैब में कर लेंगे। ठीक है। So we simply say this is a power n u of n plus a power minus n u of minus n minus 1, ठीक। summation n from minus, use analysis equation to find transform, the general equation क्या है, minus infinity to plus infinity a power n u of n u e power minus j omega n plus a power minus n u minus n minus 1 this term. फर्स्ट टर्म क्या होगा, समेशन n from 0 to infinity a power n e raised power minus j omega n। अब दूसरे में समेशन के लिमिट्स को देखने दे, डिपेंड्स ऑन u of minus n minus 1, तो u of minus n minus 1 के लिए लिमिट्स क्या बनती हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 a पावर माइनस n एंड देन फॉर्मूले का फॉर्म है e raised power minus j omega n। लेफ्ट जो आपके पास समेशन है, ये भी जो पहले एग्जांपल की है उसी को सॉल्व कर दें, दिस इज़ 1/1 माइनस ए ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा। जो सेकंड पार्ट की सिंप्लीफिकेशन है, वी से रिप्लेस n बाय माइनस n, तो ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा होल पावर n। सेकेंड समेशन में आपके पास जहाँ पे भी n है उसको रिप्लेस करना है आपने माइनस n से, या माइनस n को रिप्लेस कर दें प्लस n से। So this results in n from 1 to infinity a e raised to the power j omega whole power n। तो पहले समेशन को सॉल्व करें तो 1/1 माइनस a e raised power माइनस j omega। अब पहले में और दूसरे में डिफरेंस क्या है, इसमें लिमिट्स हैं 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का 1 से कम आएगा, a e raised power j omega हो या a e raised to power माइनस j omega हो, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 से कम है, so both of them will converge। So here we say put n minus 1 is equal to m and n equals to m plus 1 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर सर जी सर आपने ए रेज़ टू पावर माइनस एन को n लेस देन 0 के लिए लिया है, तो ये n लेस देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों के लिए भी तो हो सकता है। नहीं, डिस्क्रीट फंक्शन है, ठीक है। तो डिस्क्रीट में आपने एक पॉइंट एक दफ़ा लेना है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल निकल गया है, ठीक है। n लेस देन 0 अगर इसको आप लिखेंगे तो फिर वो होगा n लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक, कोई फर्क
नहीं पड़ता कॉन्टिन्यूस के केस में, लेकिन डिस्क्रीट में देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्लियर? ठीक सर। तो यहाँ पे भी से पुट n माइनस वन इक्वल्स टू m, तो n क्या हो जाएगा m प्लस वन। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस वन इक्वल्स टू m, तो m इक्वल्स टू 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी है वो वही रहेगा a e रेस पावर j ओमेगा, तो n माइनस वन m है तो n क्या है m प्लस वन, तो दिस इज a e रेस पावर j ओमेगा m प्लस वन। इसको आप सॉल्व कर लें, a e raised power j omega 1 अलग हो जाएगा and you are left with summation m from 0 to infinity a e raised power j omega power m. Again it is a geometric series sum formula, a e raised power j omega divided by 1 minus a e raised to the power j omega. तो फर्स्ट पार्ट का ट्रांसफॉर्म था 1 और 1 माइनस ए ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा प्लस सेकेंड पार्ट। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बुक में डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। हाउ टू सॉल्व, सिंपली वी से इसको आइलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करें दोनों साइड्स पे, तो आपके पास इसको बाद में खुद देख लें, ठीक है। आइलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करें, डिनोमिनेटर फिर एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें। सो आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। एट द एंड वी से दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉज ऑफ ओमेगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये रियल है या इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है? रियल। इट रिप्रेजेंट्स द रियल, रियल। ठीक है। इट्स ओनली रियल रियल, और इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन मिलेगी, फेज की इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। फेज जीरो आएगा आपके पास हर फ्रीक्वेंसी में, और वी से ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इन द सेम फेज। तो अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर दें, कोड फिर सिंपली n की वैल्यू डिफाइन करें, ओमेगा की वैल्यू डिफाइन करें, वी से a इज इक्वल टू 0.5, तो x1 इज योर a पावर एब्सोल्यूट ऑफ n, ठीक। तो पहले x को प्लॉट कर दें, तो वी से स्टेम nx1। दूसरा फंक्शन क्या है आपके पास, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म की जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपके पास आई है, दिस वाज 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a cos ऑफ ओमेगा प्लस a स्क्वायर। तो अब इन दोनों को प्लॉट कर दें विद देयर एब्सोल्यूट एंड एंगल, तो इनका जो ग्राफिकल रिजल्ट आता है दिस गिव्स यू दिस वैल्यू। अगर आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है, तो अगेन ये किस टाइप का सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब अगर आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे से अगेन a को माइनस कर दें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बताएगा? सर शिफ्ट हो जाएगा सर। ठीक है, एक को नेगेटिव करने से टाइम डोमेन में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें ऑसिलेशंस आ गई हैं। एक वैल्यू प्लस है, दूसरी वैल्यू माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ठीक। तो टाइम डोमेन में इट रिप्रेजेंट्स एन ऑसिलेटरी मोशन, गए ऑसिलेटरी फंक्शन है जो कुछ केसेस में डिजायर्ड नहीं होता। तो टाइम डोमेन में तो इसका इफेक्ट क्या था, पहले आपके पास एक स्मूथ ग्रोइंग डिकेइंग फंक्शन था, इंस्टेड नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग विद ऑसिलेशंस, एक प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, फर्स्ट इट वाज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ हाई हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। अब इसको देखें, अगर आप बाज़ाहिर भी देख लें तो क्यों इसको आप हाई फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, किसमें ऑसिलेशन ज़्यादा हैं। तो जितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगी टाइम डोमेन में, वैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। थोड़ी सी बात यहाँ से क्लियर होती है। सर वो प्लस वाला दोबारा बनाए। रिपीट करें सर। प्लस वाला मुश्किल तो नहीं है, माइनस हटा के प्लस कर दें, प्लस हो जाएगा।
तो अब इसमें देखें ऑसिलेशंस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस मतलब अगर आप इसको देखें तो स्टेप वाइज सिर्फ डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, माइनस की साइड पे नहीं जा रहा, मतलब उसमें ऑसिलेशंस नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव से ही पॉजिटिव वैल्यू कम हो रही है, स्मूथ डिके आप इसको कह सकते हैं। जबकि ऑसिलेशन का क्या मतलब है, डिके तो हो रहा है उसमें लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस सिग्नल। तो सिग्नल जितना स्मूथली चलेगा, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो डिके कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी। जितनी किसी एक सिग्नल में ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी उतनी फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी। तो अगर इसको देख लें तो वी से इट्स लो फ्रिक्वेंसी क्योंकि इसमें ऑसिलेशंस नहीं है। तो दैट्स वाई जो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है 0 या 2 पाई के मल्टीपल्स हैं उन पे आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है। जबकि इसी में अगर आप ए की वैल्यू माइनस कर दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो टाइम डोमेन में उसमें ऑसिलेशंस आ रही हैं, ऑसिलेशन का नुकसान फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, वी सेड इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर? ठीक है, तो ये फंक्शन भी आपका प्लॉट हो गया मैटलैब में। अब एक और क्वेश्चन, इसमें लंबी चौड़ी दास्तान है 5.3, तो इसको आप खुद इसमें देख लें, पढ़ लें, होप सो हर स्टेप इसमें डिफाइंड है। डिस्कस प्लॉट जी, नहीं अभी इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आपको दास्तान समझ ना आए तो फिर अगली क्लास में बात कर लेंगे। इनफैक्ट इसमें आपको जो सिग्नल गिवन है वो सिर्फ देख लें, आपको एक सिग्नल जो गिवन है इट इज़ अ ए पीरियोडिक स्क्वायर वेव। ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू 1 है, कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू n1 एंड इट इज़ 0 फॉर n ग्रेटर देन n1। तो एक ये इसको आप कह सकते हैं कि ए पीरियोडिक स्क्वायर वेव। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में आपने की थी, उसका ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन आया था, यहाँ पे भी आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन सिंक फंक्शन आता है, लेकिन बुक में डायरेक्टली किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया है। एट द एंड अप वी विद साइन ऑफ ओमेगा एन 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ओमेगा बाय 2, एन 1 कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कि जिस नंबर से इस नंबर तक फंक्शन की वैल्यू है और अदरवाइज नहीं है, तो इसको आप खुद देख लें। Now this thing is important, चैप्टर नंबर 2 में हम छोड़ के आए थे, इनफैक्ट प्रीवियस क्लास में हमने किया था, सिस्टम्स continuous time systems are represented by the constant coefficient differential equations। अब अगर आपके पास discrete time system है तो differential equation continuous time में यूज होंगी, तो उसका equivalent क्या है discrete में, that is difference equation। So before this difference equation मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ कहाँ पे, प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे देख लें 5.6 है, टेबल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स। तो मैं ये चीज़ चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में की थी और वहाँ पे आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट होगा, तो इन चीज़ों को देख के आए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उसी की सारी डिटेल्स भी हैं। प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। हियर वी से x of n is a periodic signal with a Fourier transform x of e raised power j omega, y of n is a signal in time domain with a transform y of e raised to the power j omega। अब continuous time और discrete में क्या फ़र्क है, एक तो रिप्रेजेंटेशन है, continuous में क्या था x of j omega and y of j omega, in case of discrete we said is x of e raised to power j omega and y of e raised to power j omega।
The second difference is that they are periodic with a period 2 pi. ठीक है, कि आप x of transform को भी 2 pi interval के लिए लें. Generally we take this interval from minus pi to plus pi just to study the symmetry properties, otherwise negative frequencies are not defined. ठीक है, लेकिन आसानी के लिए इवन है ऑड है उसको प्लॉट करना है, उसको स्टडी करना है. Generally we say take from minus pi to plus pi. So first property was linearity. Linearity कोई बताएगा क्या प्रॉपर्टी थी? मैं पूछूं तो फिर बताएंगे. शुएब साहब अवेलेबल है जी? लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लाई होता है. और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? लिनियरिटी के दो पार्ट्स हैं जी. शेर मियाँ साहब हैं? शेर मियाँ यहाँ पे देता हूँ. यस सर. जी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? कि यही सारा कुछ वाइवे में पूछूंगा जब ऑनलाइन होता है या क्लासरूम में होता है, जहाँ भी हुआ होगा. फिर आप उधर देखेंगे मेरी शक्ल. यहाँ पे तो आप मेरी शक्ल नहीं देख रहे. जी शेर मियाँ साहब, लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? सर सिग्नल क्या होगा? ax of e raised power j omega plus by of e raised to the power j omega. Do remember ये जो ट्रांसफॉर्म्ड आपके पास सिग्नल आएगा, दिस विल बी पीरियोडिक विद अ पीरियड 2 pi. ठीक है, जबकि कॉन्टिन्यूस टाइम में जब आप ट्रांसफॉर्म पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो द सिग्नल्स आर फॉर्म क्या होगा? e raised power minus j omega n naught x of e raised to the power j omega. then it's frequency shifting. पहला था टाइम शिफ्टिंग. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या है? x of e raised to power j omega minus omega naught. फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं बाय सम अमाउंट ओमेगा नॉट, उसका इफेक्ट टाइम डोमेन पे क्या होगा? सर लिनियरिटी के जब दो अंदर और प्रॉपर्टीज कह रहे थे वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी है. एडिटिविटी और होमोजेनिटी इज सेम थिंग. ठीक है, एडिशन या होमोजेनिटी दे आर सेम, एक ही चीज़ के दो नाम है. दूसरी प्रॉपर्टी स्केलिंग है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लस का साइन यूज हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द एडिटिविटी और होमोजेनिटी. और ये जो रियल नंबर्स हैं स्मॉल एज एंड स्मॉल बीज, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द स्केलिंग प्रॉपर्टी. अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को किसी कांस्टेंट से स्केल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट विल बी स्केल्ड बाय द सेम कांस्टेंट. ठीक है, सर लेकिन चैप्टर नंबर 1 में तो हमारे पास जब आता था होमोजेनिटी का अलग टेस्ट होता था, एडिटिविटी का अलग होता था. वो था विद रेफरेंस टू सिस्टम. ठीक है, क्या होगी? आउटपुट विल बी इक्वल टू द सुपरपोजिशन ऑफ द इनपुट्स. ठीक है, वो दो प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू सिस्टम. आउटपुट सिस्टम है कि एक सिस्टम को दो या दो से ज्यादा इनपुट्स दें, तो अगर वो सिस्टम लीनियर है तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इनपुट्स ड्यू टू द, मतलब सम ऑफ द आउटपुट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल सोर्सेज. दो या दो से ज्यादा सोर्सेज हों तो. जबकि यहाँ पे लीनियरिटी का मतलब क्या है कि अगर आप टाइम डोमेन में दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को ऐड करें
वो x1 x2 x3 हो या y1 y2 y3 हो, जो भी उनके नाम हो, then they are, if they are added in time domain, then in frequency domain their transforms are added, and if they are multiplied with some constant in time domain, then their transforms are multiplied with the same. हाँ सर, ये तो बाकी समझ आ रही थी, बस वो पूछना था। ठीक है। Okay, third property क्या है? Frequency shifting. So if a signal is shifted in frequency domain, this is x of e raised to power j omega minus omega naught. तो time domain में उसका क्या effect आएगा? Again, amplitude of the signal will remain same. ठीक है? तो time domain में it will be shifted by the amount of omega naught n. मीन्स उसमें phase change आएगा सिर्फ। सिमिलरली कॉन्जुगेशन हम बहुत डिटेल में 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, एक्स ऑफ एन कॉन्जुगेट का ट्रांसफॉर्म किया एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा। टाइम रिवर्सल इज एक्स ऑफ माइनस एन का ट्रांसफॉर्म किया एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, अब सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है, आवाज़ नहीं आ रही। होप सो कि अभी ठीक आएगी। टाइम एक्सपेंशन यहाँ पे प्रॉपर्टी बेसिकली टाइम स्केलिंग थी। टाइम स्केलिंग में 2 प्रॉपर्टीज थी। टाइम स्केलिंग में 2 कौन कौन सी हैं टाइप्स स्केलिंग की? सर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। टाइम एक्सपेंशन एंड टाइम कंप्रेशन। यहाँ पे सिर्फ टाइम एक्सपेंशन का नाम क्यों ले रहे हैं? टाइम कंप्रेशन कहाँ गया? कोई बताएगा? कोई भी अपनी खुशी से बता सके कि टाइम कंप्रेशन को हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे? अब इससे टाइम कंप्रेस्ड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म हम नहीं लेते। सर जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो डिवाइड हो जाता है उससे, तो वो फिर सिग्नल हमारे पास एक्सपेंड हो जाता है। वो तो एक्सपेंड तो हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ टाइम एक्सपेंशन का टर्म क्यों यूज हो रहा है? व्हाई नॉट? सर यहाँ पे से डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं ना, इसलिए नहीं हो रहा। वो कंटिन्यूस के केस में आता है। चलें इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आपसे कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को कंप्रेस करें और फिर एक्सपेंड करें उसी रेशो से, तो आपको वही सिग्नल वापस मिलेगा। या पहले आप उसको कंप्रेस करें और फिर एक्सपेंड करें कॉन्टीन्यूस के केस में उसी रेशो से, तो आपको आउटपुट पे वही सिग्नल वापस मिलता है। जबकि डिस्क्रीट के केस में ये चीज़ कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव मींस पहले कंप्रेस करें फिर एक्सपेंड करें, या पहले एक्सपेंड करें फिर कंप्रेस करें। अगर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वी सेड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो टाइम डोमेन में जो टाइम स्केलिंग है इट इज कम्यूटेटिव, कंप्रेशन एक्सपेंशन या एक्सपेंशन कंप्रेशन। जबकि डिस्क्रीट टाइम में इट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों कम्यूटेटिव नहीं है? कि अगर आप पहले सिग्नल को एक्सपेंड करें और फिर उसी रेशो से कंप्रेस करें तो रिजल्टेंट आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले डिस्क्रीट टाइम डोमेन में सिग्नल को कंप्रेस कर दें और उसके बाद फिर उसको एक्सपेंड करें तो रिजल्टेंट सिग्नल आपको चांसेस हैं कि सेम ना मिले। ठीक है, तो दैट्स सर व्हाई इसकी क्या वजह है कि मतलब दोबारा वही सिग्नल नहीं मिल सकता? वही रेशो तो सेम है, इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन। सेम है ना। देखिए आप डाउन सैंपल करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। पहले से ओरिजिनल सिग्नल में 10 सैंपल्स थे, वो कंप्रेस होके हाफ होके 5 सैंपल्स आ गए। 5 सैंपल्स तो ज़ाया हो गए ना। ठीक है, अब उन 5 सैंपल्स जो ज़ाया हुए हैं उनके क्या एम्पलीट्यूड्स थे? तो अगर आप वापस उसको दोबारा उस डबल रेशो से एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल्स तो आपको 10 मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन पे वो एम्पलीट्यूड्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दे आर लॉस्ट। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है उसको एग्जैक्टली रिकवर। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप आवाज़ सुन रहे हैं, तो जब आपको आवाज़ नहीं आती तो आप कहते हैं दोबारा बोलें। लेकिन जो चीज़ आपने नहीं सुनी आप उसको एज इट इज़ दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो पहले अगर आपका टाइम डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पहले कंप्रेस करें और फिर एक्सपेंड करें तो रिजल्टेंट सिग्नल इज़ नॉट सेम। दैट्स वाई इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम ये कह रहे हैं या पहले सिग्नल को कंप्रेस करें और फिर एक्सपेंड करें और फिर जो रिजल्टेंट आए उसका ट्रांसफॉर्म लें।
दे आर नॉट सेम, ठीक है, इनवर्स लें इनफैक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो जो भी ट्रांसफॉर्म है डिस्क्रीट के केस में, सो वी कंसिडर ओनली द टाइम एक्सपेंशन, कि आप टाइम डोमेन में सिग्नल को एक्सपेंड करें, उसका ट्रांसफॉर्म लें, ट्रांसफॉर्म लेने के बाद दोबारा उसका इन्वर्स लें, इन्वर्स लेने के बाद दोबारा उसको उसी रेशो से कंप्रेस करें, जो आपको रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा दैट विल बी सेम, ठीक। So time expansion we say xk of n equals to x of n by k if n equals to a multiple of k where k is integer, ठीक है। सर जी आपकी आवाज़ फिर से नहीं आ रही। मुझे तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, होप सो शुड बी क्लियर, ट्राई करते हैं। किसी और को भी इशू है क्लास वॉइस में या नहीं? आहिस्ता आ रही है सर आवाज, बहुत लोरी आ रही है, जैसे कानों में कोई अच्छा, लोरी नींद सुना आ रहा है रही तो है। फील हो रहा अब तेज हुई है या वही है? है। वही है सर। अब भी वही है? यस सर। अब भी वही है? और आहिस्ता हो गई। और आहिस्ता हो गई है? तो इसके साथ क्या करें? माइक पास करे सर अपने। यार एक 10-20 मिनट का ब्रेक लेते। नहीं, इससे ज्यादा माइक करीब नहीं हो सकता, ठीक है। सर ठीक है। प्लीज ड्यूरिंग क्लास ये पर्सनल कमेंट्स छोड़ दें, ठीक है। मुझे सबके यहाँ पे कमेंट्स नज़र आते हैं और इस वक्त इस क्लास में 62 कमेंट्स चल चुके हैं डिफरेंट लोगों के डिफरेंट के लिए। प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग। लड़ने घर जाओ, घर जाके क्लास ख़त्म हो जाए फिर एक दूसरे को फ़ोन करके लड़ाई करें। लीव इट। ओके, कम बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, सॉरी प्रॉपर्टीज़ पे थे। So we say time expansion xk of n is equal to x of n by k where n is a multiple of k. k क्या चीज़ है यहाँ पे? इंटीजर है which has to be greater than 0. So if k is equal to 1 तो कुछ भी नहीं होगा। If k equals to 2 it will be expanded 2 times. k equals to 3 है तो 3 times expansion होगा। तो जो आपको रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा इट विल बी एक्सपेंडेड सिग्नल। तो टाइम डोमेन में अगर आप सिग्नल को एक्सपेंड करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी सर। सर दोबारा बताएं सर। टाइम डोमेन में आप सिग्नल को एक्सपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी कम होगी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी सर कम होगी। कम होगी सर। ऑपोजिट है ना? करेक्ट। ऑपोजिट है। टाइम डोमेन में अगर टाइम ज़्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और टाइम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। चाहे वो सिग्नल पीरियोडिक हो या चाहे सिग्नल ए पीरियोडिक हो। तो अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को एक्सपेंड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक है। एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी देन एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर जे के ओमेगा। तो पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, अब उसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? के ओमेगा, ठीक है। फिर कन्वोल्यूशन वही है। इन टाइम डोमेन इफ द सिग्नल्स आर कन्वॉल्व इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दे आर मल्टीप्लाइड। So x of n convolved with y of n is x of e raised to power j omega, y of e raised to power j omega. मल्टीप्लीकेशन हम दोबारा भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ भी इसको बेसिकली देख लें। टाइम डोमेन में इफ दे आर मल्टीप्लाइड देन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दे आर कन्वॉल्व्ड, ठीक है। कन्वोल्यूशन अगर आपको याद हो तो वो क्या था? x of t convolved with h of t was x of tau h of t minus tau integral। यहाँ पे instead of tau we use the term theta, ठीक है। So this is integral x of e raised to power j theta multiplied with y of e raised to the power j omega minus theta d theta 1 over 2 by। In fact ये equation use नहीं होगी, ठीक है। Only this property is used sometimes। Time domain में multiply करें तो frequency domain में they are convolved,
तो उसके लिए क्या आता है, कन्वोल्यूशन विल बी समथिंग लाइक 1/2 पाई इंटू x of e raised power j omega. Steric means convolution y of e raised to the power j omega. तो उसको expand कर दें तो we said is x of e raised power j theta multiplied by y of e raised power j omega minus theta d theta integrated with reference to theta. और इंटरवल के लिमिट्स 2 पाई क्यों ले रहे हैं कि because we say in frequency domain both signals x and y repeat after 2 पाई, जबकि कॉन्टीन्यूस टाइम में अगर आप जाके देख लें चैप्टर नंबर 4 में तो वहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x of t multiplied with y of t and then its integral convolution will be 1/2 pi x of j omega convolved with y of j omega which will be 1/2 pi integral. उसके केस में इंटेग्रल की लिमिट्स बनती हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x of j theta multiplied by y of j omega minus theta d theta. तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में से फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे इंटेग्रल की लिमिट्स 2 पाई हैं जबकि कॉन्टिन्यूस के केस में इंटेग्रल की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. कॉन्टिन्यूस में क्या था, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, ठीक है, डेरिवेटिव. तो उसका इक्विवेलेंट कॉन्टिन्यू डिस्क्रीट में क्या है, इट इज डिफरेंस. एंड वी से डिफरेंस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय x of n minus x of n minus 1. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस. x of n का ट्रांसफॉर्म क्या है, x of e raised to the power j omega. यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी x of n minus 1 का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e raised to the power linearity again. तो अगर इसमें से x of e raised power j omega को कॉमन ले लें तो we said is 1 minus e raised to the power minus j omega x of e raised to the power j omega. Then property is accumulation. Continuous में था integration, यहाँ पे summation या accumulation. So if you say x of n is summation k from minus infinity to n x of k, इसका transform क्या होगा, just like a derivative, this will be 1 divided by 1 minus e raised to power minus j omega x of e raised to the power j omega plus pi times x of e raised to power j0 into summation delta of omega minus 2 pi k. अगर आप कॉन्टिन्यूस वाला उठाएं तो उसमें आपको सिर्फ ये टर्म नहीं मिलता. तो यहाँ पे ये टर्म क्यों है, एक्यूमुलेशन रिवाइज करें क्या होता है फिर से. चलो एक्यूमुलेशन को फिलहाल छोड़ दें क्योंकि ये यूज नहीं हो रही. ठीक है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो अगर x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म है x ऑफ e रेज़ पावर j ओमेगा, तो n x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j टाइम्स d बाई डी ओमेगा x ऑफ e रेज़ टू द पावर j ओमेगा. ये हम कंटिन्यूस में भी कर चुके हैं कि t टाइम्स x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या था, j टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ पे भी वही है, n x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j times conjugate of e raised to power minus j omega. Then real of x of j omega will be same as real of this part. ठीक है, real of x of e raised to power minus j omega. Imaginary of x of e raised to power j omega is same as minus times imaginary of x of e raised to power minus j omega. ये कब कंडीशन है, जब x of n रियल हो. ठीक है, तो magnitude of x of e raised to power j omega is same as magnitude of x of e raised to power minus j omega. And angle of x of e raised to power j omega will be same as minus times angle of e raised to the power minus j omega. ये कब कंडीशन है, when x of n is real. फिर सेकंड क्या था, रियल एंड इवन. तो ट्रांसफॉर्म भी रियल और इवन होगा. अगर इनपुट सिग्नल टाइम डोमेन सिग्नल रियल और ऑड है, जो ट्रांसफॉर्म सिग्नल इट विल बी प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड. फिर इवन और डिकम्पोजिशन क्या थी कि x of n is equal to sum of even part plus odd part. तो even का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, it will be simply real part of the transform of the function signal. और उसी सिग्नल का जो odd part है उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, this will be j times the imaginary part of the Fourier transform of the function.
And the last one is again Parseval's relationship. Parseval's relationship क्या है? It is a relationship between the signal energy and Fourier transform. कि अगर आपके पास ए पीरियोडिक सिग्नल है और आप उसकी सिग्नल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, वो गॉट टू ऑप्शंस. वन, टू यूज दिस इक्वेशन कि टाइम डोमेन सिग्नल को यूज करना है तो एक्स ऑफ एन स्क्वायर लें, फिर उसको सम कर दें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट गिव्स यू द सिग्नल एनर्जी. Similarly, 1 over 2 pi integral x of e raised power j omega magnitude square d omega. अब ओमेगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो दैट्स वाई वी से इट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में 2 पाई लिमिट क्यों है? बिकॉज एक्स ऑफ ई रेज़ पावर j ओमेगा इज पीरियोडिक विद अ पीरियड 2 पाई. तो कॉन्टिन्यूस में जो पार्सेवल्स रिलेशनशिप थी, अगर वो आप देख लें तो क्या थी? इंटीग्रेशन x ऑफ t square dt that was equal to 1 over 2 pi integral limits were from minus infinity to plus infinity and x of j omega magnitude square d omega. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वही है लेकिन इसकी लिमिट्स क्या होंगी? सिर्फ 2 पाई. ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इसी बुक में बहुत सी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं. ठीक, तो जो इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन विद एग्जांपल्स मैंने करवानी है सिर्फ, एंड द सेकंड इज डुअलिटी. तो मैं आजकल मैं इनके दोबारा लेक्चर नोट्स बना के अपलोड करूँगा, तो उनको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पढ़ेंगे. अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं. ठीक है, तो इनको भी एक दफ़ा देख लें बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट. फोरियर ट्रांसफॉर्म है और दूसरी तरफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं. ठीक, प्लीज़ ज़रा इस टेबल को ख़ुद बाद में स्टडी कर लें, कोई इशू हो तो फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. एंड आई विश कि नेक्स्ट क्लासरूम में हो. Now come back to this original condition thing. वो क्या है? सर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हुई है क्लासेस के बारे में? अभी तक. So we say continuous time systems are represented by differential equations. तो उनके जो equivalents in discrete time में we say they are represented by the difference equation. And a very general difference equation, we say linear constant coefficient difference equation for LTI system with input and output y of n is given by continuous में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव था, यहाँ पे डिफरेंस समेशन है डिफरेंस के लिए. So summation k from 0 to n a k is y of n minus k equals to summation k from 0 to m b k x of n minus k. So using the time shifting and convolution property कि y of n का ट्रांसफॉर्म क्या है? y of e raised to the power j omega. तो a k times y of n minus k का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? a k times e raised to power minus j omega k y of e raised to the power j omega. If y of n is x of n convolved with h of n, then y of e raised to power j omega is x of e raised to power j omega multiplied with h of e raised to the power j omega. So using this equation and time shifting property, तो summation की जो equation है ऊपर x, it can be rewritten as summation k from 0 to n a k is e raised to power minus j k omega x of e raised to power j omega multiplied with h of e raised to power j omega equals to summation k from 0 to m summation k from 0 to m b k e raised to power minus j omega k x of e raised to the power j omega. समेशन विद रेफरेंस टू k है तो ओमेगा के टर्म्स को आप इजीली अलग कर सकते हैं. so x of e raised power j omega दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएंगे. you simplify for h of e raised power j omega, this results in summation k from 0 to m b k is e raised to the power minus j omega k divided by summation k from 0 to n a is e raised to the power minus j omega k. इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं. if you start with the highest degree, so we say bm e raised to the power minus j omega m plus bm minus 1
e raised power minus j omega m minus 1. तो लास्ट टू टर्म्स क्या होंगे, b1 e raised power minus j omega 1 plus b naught divided by an e raised power minus j omega n plus an minus 1 e raised power minus j omega n minus 1 up to a1 e raised power minus j omega plus a naught. तो अगर आप इनको रो वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो b किस तरह लिखने होगा, स्क्वायर ब्रैकेट bm स्पेस bm minus 1 bm minus 2 b1 b naught, और डिनोमिनेटर को अगर आप रो वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें कोफिशिएंट्स को, this will be an minus 1 an minus 2 up to a1 a naught. ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली यूज होगी मैटलैब में टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एज वेल एज टू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. ठीक, कॉन्टिन्यूस में क्या था, bm j ओमेगा पावर m bm minus 1 j omega power m minus 1. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ j omega we use e raised to the power minus j omega. Using this कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एक एग्जांपल को समझ लें तो होप सो आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 कवर होता है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म. ठीक, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो प्लीज साथ साथ पूछते जाएं. So you are given a difference equation किसी भी सिस्टम की, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की. We say it is linear system, we also say it is time invariant, so it is an LTI system. ठीक है, so y of n minus 3 by 4 y of n minus 1 plus 1 by 8 y of n minus 1 2 equals to 2 times x of n. ये एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है. इस एक डिफरेंस इक्वेशन के लिए आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करना है, आपने इम्पल्स रिस्पांस फाइंड करना है, गिवन इनपुट के लिए आपने आउटपुट फाइंड करनी है. 3 चीज़ें. ठीक है, फिर एक आप जो यहाँ पे नहीं है, यू हैव टू फाइंड द स्टेप रिस्पांस एज वेल, कि सिस्टम का स्टेप रिस्पांस क्या है. एंड देन ये 4 चीज़ें हो गई. और 5वीं चीज़ फिर क्या बनती है कि क्या ये इक्वेशन जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज दैट सिस्टम मेमोरीलेस, इज दैट सिस्टम कॉजल, इज दैट सिस्टम इन्वर्टेबल, इज दैट सिस्टम स्टेबल. ये सारे एक ही एग्जांपल्स में कवर होंगे. ठीक है, बुक में तो सारा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं उन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ. तो सिस्टम की इक्वेशन गिवन है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो सिस्टम गिवन है आपको, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड लिनियरिटी प्रॉपर्टी. तो y ऑफ n का ट्रांसफॉर्म क्या है, y ऑफ e रेज़ पावर j ओमेगा. y ऑफ n माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e रेज़ पावर माइनस j ओमेगा. 3/4 अपनी जगह पे आ रहा है. देन प्लस 1/8 y ऑफ n माइनस 2 का ट्रांसफॉर्म क्या है, e रेज़ पावर माइनस j 2 ओमेगा. y ऑफ e रेज़ पावर j ओमेगा इक्वल्स टू 2 times x of e raised to the power j omega. So we know convolution property that y of e j omega is equal to h multiplied by x. Now simplifying this equation for h of e raised to the power j omega. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से y को कॉमन लें तो यू आर लेफ्ट विद दिस टर्म, एंड राइट हैंड साइड इज 2x. y divided by x equals to 2 divided by 1 minus 3/4 e raised to power minus j omega plus 1/2 e raised to the power j2 omega. h of e raised to the power j omega equals to 2 divided by 1 minus 3/4 e raised to power minus j omega plus 1/2 e raised to the power minus j2 omega. तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है सिस्टम का. कोई यहाँ से देख के बता सकता है कि ये किस किस्म का सिस्टम होगा, मीन्स किस किस्म का फिल्टर होगा. इज इट अ लो पास फिल्टर, इट इज अ हाई पास फिल्टर, इट इज अ बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, किस टाइप का होगा, लो पास होगा. कैसे. जीरो फ्रीक्वेंसी पे पुट कर. जी, ओमेगा 0 पुट करें क्या आता है. सर हम अपने पास पेपर पेंसिल होगा ना, सॉल्व करें. ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे क्या आता है. सर 0 पे भी डिफाइन आता है, और अगर हम वो करें इन्फिनिटी पुट सर करें ऐसे तो e की पावर तो माइनस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू पेपर 0. पेंसिल
आपके पास पेपर पेंसिल दोनों अवेलेबल है, मुझे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड बताएं। जी सर। ओमेगा 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 1 माइनस 3/4 प्लस 1/8, एलसीएम 8 आ गया, 8 माइनस 6 प्लस 1। सर वैसे भी उसके इवन मल्टीपल्स पे पोल्स बन रहे हैं ना, तो इवन में इवन जो होता है वो लो पास के लिए होता है। चलिए पोल्स और जीरोस की बात तो चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, यहाँ पे सिंपल बताएं। ओमेगा इक्वल 5.3333 क्या चीज, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे क्या है, -10/8। -10/। नो सर वो नहीं है, वो नीचे का सिर्फ है। टोटल क्या होगा, 5.3 16 बनेगा। 16 by 3 या 5.33 होती है। इस अभी मैटलैब में इसको देख लेंगे कि क्या आता है, लेकिन मैथमेटिकली आपने क्या करना है कि पहले इसका मैग्नीट्यूड की इक्वेशन अलग फाइंड करनी है, फेस की अलग फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर पे आयलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करें दोनों पार्ट्स में, ठीक है। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। देन यूज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अ फंक्शन मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉन्जुगेट। प्लीज ये आपने करना है एज एन असाइनमेंट। तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उसको मीन्स टोटल फंक्शन को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें आफ्टर यूजिंग आयलर्स आइडेंटिटी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। सो दैट विल गिव यू अ मैग्नीट्यूड इक्वेशन। फिर उसको एज वी ऑलरेडी नो दैट कि दिस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। जब भी आपने इनको प्लॉट करना है, ठीक है, आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप एक तरफ लेंगे ओमेगा जिसकी लिमिट्स होंगी -पाई से +पाई तक। सो डू रिमेंबर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड जब भी आप प्लॉट करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी फंक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जनरली इट इज एन इवन फंक्शन, स्पेशली इन दिस केस। आप ओमेगा को रिप्लेस भी कर दें माइनस ओमेगा से मैग्नीट्यूड में, पाई से +पाई लें तो जो वैल्यू आपको -पाई पे वैल्यू मिलेगी वही पाई पे मिलेगी, जो वैल्यू पाई/2 पे मिलेगी वही वैल्यू आपको -पाई/2 पे मिलेगी। इसको प्लॉट करने के लिए यू हैव टू टेक द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन -पाई एंड +पाई से विद एन इंक्रीमेंट ऑफ पाई/2। तो टोटल पॉइंट्स आपके पास क्या बनेंगे, -पाई, -पाई/2, 0, +पाई/2 and then +पाई, and after that it will repeat। तो इन 5 पॉइंट्स पे आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें और इनका फेज फाइंड करें और उसको प्लॉट कर दें, and then we says it is periodic with a period 2 पाई। जब वो periodic है तो it can be extended up to any number of periods। तो फिर वहाँ से आपको पता चलता है कि सिग्नल आपके पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है या हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ओमेगा की वैल्यू 0 डालें और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें और फिर इसी में ओमेगा की वैल्यू पाई इंसर्ट करें और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए यू हैव टू गो फॉर आइदर रैशनलाइजेशन या फिर आपने कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू पाई/2 एंड देन ओमेगा इक्वल्स टू पाई। सिर्फ आप ये 3 पॉइंट्स फाइंड कर लें, बाकी इससे सिग्नल बन जाता है, पीरियोडिक सिग्नल है और इवन फंक्शन भी है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इक्वल्स टू पाई/2 एंड ओमेगा इक्वल्स टू पाई, इन तीनों पे आपने एम्पलीट्यूड्स को या मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है। तो अगर 0 पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द अदर 2 पॉइंट्स, सो वी से इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अगर ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू अदर 2 फ्रीक्वेंसीज, देन वी से इट विल रिप्रेजेंट अ हाई पास फिल्टर। और अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे मैग्नीट्यूड सेम है और ओमेगा इज इक्वल टू पाई/2 पे मैक्सिमम है, देन वी से इट विल बी अ बैंड पास फिल्टर। क्लियर है एक्सक्यूज मी सर, जी? सर जो आपने बताया अभी, तो ये जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में, तो इधर हम जब पाई/2 पुट करेंगे तो उधर हम आइलर्स आइडेंटिटी लगा सकते हैं।
जाहिर है आप मैग्नीट्यूड उसके फाइंड बाद करने के लिए आप मैग्नीट्यूड फाइंड आप कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड आप दो तरीकों से फाइंड करते हैं। एक आपके पास इक्वेशन क्या है कि आप उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें उसके कॉन्जुगेट से और उसका स्क्वायर रूट लें, दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको रैशनलाइज करें, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसका रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, देन रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर रिजल्ट्स इन का स्क्वायर रूट लें, तो दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड। तो अगर आप यहाँ पे से ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लेंगे, फिर आप इस पे आयलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, दैट्स से cos पाई बाय 2 माइनस जे साइन पाई बाय 2, एंड सेम इज हियर। पाई बाय 2 लेते हैं तो 2 2 कैंसिल्स आउट, यू आर लेफ्ट विद पाई ओनली, सो e raised power माइनस e raised power माइनस जे पाई हो जाएगा, तो cos पाई माइनस जे साइन पाई, ठीक है। तो उसमें उनकी वैल्यूज डाल दें साइन और cos की, तो आपके पास एक सिंप्लीफाइड कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। मीन से 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक उसका रियल पार्ट, दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट, सिंपल नंबर। फिर उस नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, सो दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली देन ओमेगा इज इक्वल टू पाई, उसको सॉल्व करें, फिर उन तीनों के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करें, ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ओमेगा इक्वल्स टू पाई, क्योंकि 0 इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, पाई इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, पाई बाय 2 इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इट्स अ लो पास फिल्टर। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू पाई है, उस पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर 2 पॉइंट्स, देन वी से इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर। और अगर ओमेगा इक्वल्स टू 0 और पाई, देयर आर केसेस कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड्स आपको सिमिलर मिलते हैं और पाई बाय 2 पे मैक्सिमम होगा, then we say it will be a band pass filter. So depending upon these values, end result will be either a band pass filter or band stop filter या band reject filter, जो भी है। And these all are dependent on कि हाई पास है या बैंड पास है, जो भी है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इन कोफिशेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। -3/4, 1/8, 2। सो अगर इन वैल्यूज़ को आप चेंज करेंगे कोफिशेंट्स को, then the types of filters will change। तो मैथमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ठीक है, लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, मैथमेटिकल लेंथी मैथमेटिक्स चाहिए, 2-4 पेजेस लगेंगे उस पर, तो उस पर लगा लें कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें एंड देन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड फेज मैथमेटिकली। मैटलैब में कैसे है? मैटलैब में सिंपल है, वो भी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इसी की फर्दर एक्सटेंशन है कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है, मीन्स इस सिस्टम का जो आपने फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड किया है इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो इन्वर्स लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, बुक में और तरीके से चल रहा है, मैं किसी और तरीके से चल रहा हूँ, दोनों को देख लें तो आपका क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे हाउ टू गो फॉर दैट। सो हियर वी सिंपली से सपोज दैट e raised power माइनस जे इक्वल्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है दिस इज e raised to the power माइनस जे ओमेगा, ठीक है। हम क्यों इसको वेरिएबल ले रहे हैं आपको आखिर में क्लियर हो जाएगी ये चीज़। सो हियर वी से e raised power माइनस जे ओमेगा इक्वल्स टू आर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, h of e raised power j omega, so this will become h of 1 over r, so this is 2 divided by 1 minus 3/4 r plus 1 over 8 r square, ठीक। डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो आपके पास 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 इंटू 2 विल बी 16 एंड डिनोमिनेटर में बनता है 8 माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 8। इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 4r प्लस 8, फैक्टर्स बन जाएंगे r माइनस 2 इंटू आर माइनस 4। नाउ यूज पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, तो 16 डिवाइड बाय r माइनस 2 r माइनस 4 इक्वल्स टू a बाय r माइनस 2 प्लस b बाय r माइनस 4। सिंप्लीफाई कर दें तो आपको b की वैल्यू मिलती है +8, a की वैल्यू मिलती है -8। तो मैं इनको उल्टा करके लिख रहा हूँ, b बाय r माइनस 4 इज 8 बाय r माइनस 4 माइनस 8 बाय r माइनस 2। यहाँ पे r की वैल्यू इंसर्ट कर दें
So this is h of e raised power j omega is 8 divided by e raised power minus j omega minus 4 minus 8 divided by a minus e raised power minus j omega minus 2. Continued. Now we have to use the transform pair. क्यों transform pair use करें? शुरू में given है आपको. Find the impulse response using the transform pair. Means के inverse find करने के लिए आपने इस transform pair को use करना है. You are not allowed to use the synthesis equation क्योंकि वो lengthy काम है. Let's come back to this thing. Transform pair कौन सा है? A power n u of n 1 over 1 minus a e raised to the power minus j omega. अब ये पहला पार्ट क्या है? 8 divided by e raised to power minus j omega minus 4. प्लीज बुक में और तरीके से आप वहां से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. तो अब मैंने इसको और इस ट्रांसफॉर्म का जो ट्रांसफॉर्म है फंक्शन का, इसको एक जैसा बनाना है. ठीक है, तो एक जैसा बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ -4 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा, और फिर मैं -4 कॉमन लूँ. आई एम लेफ्ट विद 1 - 1/4 ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा, which is simplified to -2 divided by 1 - 1/4 e raised to the power minus j omega. Similarly, जो दूसरा पार्ट है 8 divided by e raised power minus j omega minus 2, which can be written as 8 divided by -2 plus e raised power minus j omega minus 2 common लें. Simplify करें, you are left with -4 divided by 1 - 1/2 e raised to the power minus j omega. ठीक है, फंक्शन ये आपके पास है यहाँ से प्रीवियस पेज से. That is 8 divided by e raised power minus j omega minus 4 minus 8 divided by e raised power minus j omega minus 2. Simplify करके क्या है? 4 divided by 1 - 1/2 e raised power minus j omega minus 2 divided by 1 - 1/4 e raised to the power minus j omega. प्लीज हम यहाँ पे पोल्स और जीरोस की बात नहीं करते, लेकिन जब z ट्रांसफॉर्म आएगा तो फिर वहाँ पे सारी बात पोल्स और जीरोस की होगी. सो हियर वी सिंपली से इसका इन्वर्स क्या बनता है यूजिंग ट्रांसफॉर्म पेयर? 4 times 1/2 power n u of n minus 2 times 1/4 power n u of n. ये आपके पास क्या आ गया? इसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? यहाँ तक क्लियर है? यस सर. थैंक यू. सही, लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया. ये एच ऑफ ई जो ओमेगा था हमारे पास, फिर इस पे हमने यहाँ से तो ये एच ऑफ एन जो निकाला है, आखिरी इन्वर्स जो निकाला है, जी, इसके लिए ट्रांसफॉर्म पेयर की इक्वेशन गिवन है ना. ए पावर एन यू ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म क्या है? 1 over 1 minus a e raised to the power j omega with a magnitude of a less than 1. तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें, a क्या बनता है? 1/2 और उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है. ठीक है, तो 4 तो स्केलर नंबर अपनी जगह पे आ जाएगा. जो रिमेनिंग पार्ट है 1 over 1 minus 1/2 e raised to the power minus j omega. अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पेयर को यूज़ करें, a की वैल्यू 1/2 बनती है, तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा? 1/2 पावर n u ऑफ n. सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है -2 टाइम्स 1/4 पावर n u ऑफ n. ठीक है, सही. अब ये चीज़ बार बार यूज़ होती है इसी पूरे लेक्चर में भी और इस पूरी किताब में भी. अब ये बेसिकली एग्जांपल 5.20 है, लेकिन मैं इसको इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इम्पल्स रिस्पांस जो आपने फाइंड किया है वो आपके पास है. ठीक है, और इनपुट गिवन है एज 1/4 पावर n u of n. So find the system response means find the output of the system. तो LTI सिस्टम की आउटपुट जनरली किसके इक्वल है? Output of LTI system is equal to input convolved time domain में Convolved हार्मोनिक pulse response. input convolved with impulse response, और frequency domain में output क्या होगी? y of e raised power j omega will be x of e raised power j omega multiplied with h of e raised to the power j omega. अब x of n given है, तो x of e raised power j omega क्या होगा? 1 divided by 1 - 1/4 e raised to the power minus j omega.
मैथमेटिकली सॉल्व करें या ट्रांसफॉर्म पेयर को यूज करें, एक ही चीज है. Then what is h of e raised power j omega? We have already done this. 4 divided by 1 minus 1 by 2 e raised power minus j omega minus 2 divided by 1 minus 1 by 4 e raised to the power minus j omega. इन दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करना है. ये फर्स्ट टर्म आपके पास x है, सेकंड टर्म आपके पास h of e raised power j omega. So दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. So this will be 4 divided by 1 minus 1 by 4 e raised power minus j omega into 1 minus 1 by 2 e raised power minus j omega minus 2 divided by 1 minus 1 by 4 e raised to the power minus j omega whole square. ठीक, तो मैं स्क्वायर के टर्म को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप पहले कर चुके हैं बीसी क्लास में. So here we say, let's say y of e raised power j omega is y1 minus y2. तो y1 किसकी इक्वल है? 4 divided by this term. और y2 किसके इक्वल है? 2 divided by 1 minus 1 by 4 e raised power minus j omega whole square. तो पहले पार्ट को अब दोबारा यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से उसको सिंप्लीफाई कर दें. तो y1 of e raised power j omega is minus 4 divided by 1 minus 1 by 4 e raised power minus j omega plus 8 divided by 1 minus 1 by 2 e raised power minus j omega. इसका इनवर्स लें तो it is minus 4 into 1 by 4 power n u of n plus 8 times 1 by 2 power n u of n. ये दूसरी मैंने इक्वेशन ये सेम है, इसको खुद देख लें, समझ आए तो ठीक है, ना भी आए तो y1 of n की जो पहली इक्वेशन लिखी है, दिस इज मोर देन इनफ. ठीक, अदरवाइज अगर आप 4 को किस तरह लिख सकते हैं? 1 by 4 पावर माइनस 1. तो अगर मैं 4 को लिखता हूँ 1 by 4 पावर माइनस 1, सो बेस सेम पावर्स आर एडेड, तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 4 पावर n माइनस 1 u of n. 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, और उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 by 2 पावर माइनस 3. So base same powers are added, so this will be 1 by 2 power n minus 3 into u of n. Now important thing is to find y2 of n from y2 of e raised to the power j omega. तो y2 of e raised to power j omega क्या है? 2 divided by 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega whole square. अब इस पे partial fraction भी apply नहीं होता है यहाँ पे, तो we use the differentiation in frequency domain. तो वो property क्या है? n times x of n is j times d by d omega x of e raised to power j omega, और n times z of n क्या होगा? j times derivative of z of e raised to power j omega with reference to omega. omega continuous function है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफर डेरिवेटिव हम ले सकते हैं. सो यहाँ पे हम assumption क्या ले रहे हैं, प्लीज इन स्टेप्स को समझ लें, फिर दिस क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर. Assuming z of e raised to power j omega is 1 over 1 minus 1 by 4 e raised to the power minus j omega. Assumption क्या है? z की. इसका डेरिवेटिव लें विद रेफरेंस टू ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कहीं पे कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है तो प्लीज़ पूछ लें. d by d omega z of e raised to power j omega is d by d omega of this term equals to d by d omega. इस टर्म को ऊपर ले जाएं तो we said is power minus 1. इसका डेरिवेटिव क्या होता है? minus 1 divided by 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega square means minus 1 हो जाएगा. And then the derivative of remaining term, which is 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega. First is minus 1 divided by 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega whole square into minus 1 by 4 minus j e raised to the power minus j omega, which is the derivative of this part. ठीक, then it is minus 1 by 4 j e raised to power minus j omega divided by into 1 by 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega whole square. तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो 1 by 4 यहाँ पे जाके 4 हो जाएगा, ये माइनस जे है वहाँ पे जाके प्लस जे, दिस इज e raised to power minus j omega, this will be e raised to power plus j omega into d by d omega into 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega. ये किसकी इक्वल आ गया आपके पास? 1 over 1 minus 1 by 4 e raised to the power minus j omega whole square. So this whole square term equals to this one. यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर. जी सर.
अब मुझे किसका इन्वर्स चाहिए? मुझे चाहिए इन्वर्स y2 का, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 4 ई रेज़ पावर माइनस j ओमेगा होल स्क्वायर। ये तो 1 ओवर 1 माइनस 1 बाय 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस टर्म, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। ठीक, क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, विच इज 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 4 ई रेज़ पावर माइनस j ओमेगा होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 8j ई रेज़ पावर j ओमेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब इसका इन्वर्स लेना है। ठीक है, इन्वर्स लेने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहती है? j टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा? n टाइम्स इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है? 1 ओवर 1 माइनस 1 बाय 4 ई रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो इसका डेरिवेटिव का इनवर्स क्या आएगा? इट विल बी n टाइम्स इनटू द फोरियर इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। इस फंक्शन का इनवर्स क्या बनता है? 1 ओवर 4 पावर n u ऑफ n। इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 j बाई डी ओमेगा विल बी 8 टाइम्स n इंटू 1 बाई 4 पावर n u ऑफ n। ठीक है, 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? मुझे यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास 8 है। क्लियर? अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ई रेज़ पावर j ओमेगा, तो x ऑफ n माइनस n नॉट का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ई रेज़ पावर माइनस j ओमेगा n नॉट x ऑफ ई रेज़ पावर j ओमेगा। तो अगर n नॉट की वैल्यू -1 लें, so this will be x of n plus 1, so e raised to power j omega into x of e raised to the power j omega। मीन्स कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है e raised to the power j omega समथिंग, so in time domain this will be representing a time shift। ठीक है, तो x of n plus 1 का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? e raised to power j omega x of e raised to power j omega, और x e raised to power j omega x of e raised to power जो इनवर्स क्या होगा? This will be x of n plus 1। Now using this time shift property, 8 times j of d by d omega का इनवर्स क्या है? 8n into 1 by 4 power n u of n। तो 8 e raised to the power j omega of this term। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इनवर्स था, तो जो टर्म e raised to power j omega है, this basically introduces a 1 unit left shift into the time domain function। तो टाइम डोमेन फंक्शन क्या है? 8n इंटू 1 बाई 4 पावर n u ऑफ n। तो अगर आप इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करें टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद e रेज़ टू द पावर j ओमेगा। जी, तो फाइनल स्टेप क्या कहते हैं? 8 e रेज़ पावर j ओमेगा j टाइम्स दिस टर्म इज 8 इंटू n प्लस 1 1 बाई 4 पावर n प्लस 1 u ऑफ n प्लस 1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म पेयर में, this is basically y2 of e raised to power j omega equals to 2 by 1 by 1 minus 4 e raised to power minus j omega whole square, that is equal to 8 e raised to power j omega multiplied by j times d by d omega into 1 minus 1 by 4 e raised to power minus j omega। तो y2 of n क्या होगा? From all this discussion, this will be 8 times n plus 1 1 by 4 power n plus 1 u of n plus 1। So now last thing, y of n is y1 plus y2। y1 of n हमने find किया था, that was minus into 1 by 4 power n minus 1 u of n plus 1 by 2 power n minus 3 u of n minus y2। ठीक है, which is 8 times n plus 1 1 by 4 power n plus 1 into u of n plus 1। अब इस इंटरमीडिएट इक्वेशन को बेशक दोबारा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं जो ओरिजिनल थी, -4 टाइम्स 1 बाई 4 पावर n u ऑफ n प्लस 8 टाइम्स 1 बाई 2 पावर n u ऑफ n माइनस 8 टाइम्स n प्लस 1 1 बाई 4 पावर n प्लस 1 u ऑफ n प्लस 1। पहले दो टर्म्स तो वही हैं, सिर्फ ये आखिरी टर्म को देख लें कि यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे 2 कहाँ से आया?
So this is basically 1/4 power n plus 1. अच्छा यहाँ पे एक और टर्म, अगर n की वैल्यू -1 लें तो ये टर्म क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? n की वैल्यू -1 लें प्लीज। 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। जब n की वैल्यू -1 लेंगे तो यहाँ पे n + 1 है, सो दिस इज -1 + 1 0, सो दिस एंटायर टर्म विल बी 0। ठीक है, एंड फॉर n ग्रेटर देन -1 दिस विल बी डिफाइंड। क्लियर? और यहाँ पे -8 है और ये 1/4 पावर n + 1 है, तो अगर मैं n + 1 को हटा के सिर्फ पावर n में लिख दूँ, दिस विल बी 1/4 पावर n इंटू 1/4, तो 1/4 into 8 will be 2, so -2 into n plus 1, 1/4 power n u of n। तो जो आपके पास आंसर गिवन है, दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इससे ऊपर वाले जो स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स कि आपके पास जो पावर n में है उसके साथ जो भी एलिमेंट हो, शुड बी ओनली इन द पावर्स ऑफ n। क्यों n + 1 + 2 है तो वो कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे, उनको अलग कर दें। So output of this system is equal to this term. Now, chapter 2 के questions हैं ये सारे। Is this system memoryless? Memoryless का criteria क्या था? H of n is k times delta of n where k is any real constant. क्या ये condition justify हो रहा है for a given h of n? नो सर। h of n क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, जो हमने अभी पार्शियल फ्रैक्शंस करके यूज फाइंड किया था? ये 4 times 1/2 power n u of n minus 2 into 1/4 power n u of n. So we say, is this system memoryless? No, this system is with memory. ठीक है, फिर ये है मेमोरीलेस है नहीं सर? आवाज आहिस्ता हो गई बीच में। आप बताएं ना, मेमोरीलेस है या नहीं है? सर मेमोरीलेस है। मेमोरीलेस है? आप जरा नीचे इक्वेशन दिखाए सर दोबारा। आप खुद लिख लेना, h of n is equal to k times delta of n। सर ये तो यहाँ पे u ऑफ n है, तो मतलब नहीं है फिर। मेमोरीलेस नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि विद मेमोरी। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता हो गई है। पहले अभी सही हो जाएगी, अब कोशिश करता हूँ कि माइक को थाम के रखूँ। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज विद मेमोरी, क्योंकि h ऑफ n इक्वल्स टू k टाइम्स डेल्टा ऑफ n मेमोरीलेस के लिए वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। So we say this system is with memory. Is this system causal? Causality का क्या क्राइटेरिया था? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बैकग्राउंड में आपको शो, अच्छा प्लीज, is this system causal? Who will respond? सर यस सर, मेमोरीलेस यस नहीं है सर, ये तो कॉजल है। मेमोरीलेस है तो फिर कॉजल भी नहीं है ना, तब कॉजल मेमोरीलेस है। नहीं है। ठीक है, कॉजिलिटी का क्राइटेरिया क्या था? सर कि एच ऑफ एन जो है वो 0 से पहले 0 हो। h of n should be 0 for n less than 0। तो यहाँ पे अगर आप n less than 0 मीन्स n की वैल्यू -1 डालें तो क्या आंसर आएगा? 0 And आ रहा है। 0 आएगा। अगर n की वैल्यू -2 डालें फिर भी 0 आएगा, बिकॉज u ऑफ -1 इज 0, u ऑफ -2 इज 0, u ऑफ -3 इज 0। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 से कम डालेंगे तो h ऑफ n 0 आएगा, और अगर n की वैल्यू 0 से ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मिले। देन वी से दिस सिस्टम इज causal. Is this system stable? Is this system stable? सर इंटीग्रेट करेंगे अगर इसका, वो हमारे पास लेस देन इंटीग्रेट इन्फिनिटी आता करेंगे, है। समेशन सर। डिस्क्रीट है तो समेशन होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन होगी। तो अगर इंटीग्रेट इन्फिनिटी, करेंगे, देख के आपको क्या लग रहा है? स्टेबल लग रहा है।
कैसे लग रहा है? मीन्स कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी समेशन इसकी लेते हैं, तो अगेन यूजिंग द ज्योमेट्रिक सीरीज सम फार्मूला, तो उससे क्या आएगा? दैट विल बी समेशन फ्रॉम 1/0 टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n। तो इस पहले समेशन का आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 4 8। तो पहले पार्ट के समेशन का रिजल्ट 8 आता है। दूसरे पार्ट का क्या आएगा? 2 into 1 divided by 1 minus 1 by 4. So that will be 3 by 4, 4 by 3, 4 to 8, 3. So 8 minus 8 by 3. आंसर क्या आता है? 8 minus 8 by 3. ठीक है, तो मैथमेटिकली जो भी आंसर आए, तो इक्वेशन आपके पास बेसिकली क्या थी? स्टेबिलिटी की। समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h of n should be less than infinity. Means the impulse response should be absolutely summable. कि अगर आपका impulse response absolutely summable है तो इसे सिस्टम इज स्टेबल। और कॉजेलिटी का क्या है? वो हो चुका है। इन्वर्टिबिलिटी क्या थी? कि आप इस सिस्टम का इनवर्स फाइंड करें तो इनवर्स तो आपको इजीली मिल जाएगा। कि आप इनवर्स कन्वॉल्व करें तो इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन। दिस इज क्राइटेरिया। ठीक है, टू वेरीफाई दिस थिंग ठीक है, तो एच आई ऑफ ई रेस पावर जे ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 ओवर एच ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा। तो अब व्हाट इज एच ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा? जी बिल्कुल, स्टार्ट में दिस टर्म एच ऑफ ई रेस टू द पावर जे ओमेगा इज 2 divided by 1 minus 3 by 4 e raised to power minus j omega plus 1 by 8 e raised to the power minus j2 omega। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दें। उल्टा करके क्या आंसर आता है? प्लीज इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? दिस विल बी 1 minus 3 by 4 e raised to power minus j omega plus 1 by 8 e raised to power minus j2 omega divided by 2। 2 हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा तो दिस विल बी 1 by 2 minus 3 by 2 e raised to power minus j omega plus 1 by 3 by 8 e raised to power minus j omega plus 1 by 16 e raised to power minus j2 omega। प्लीज यहाँ पे आपकी टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक, तो आंसर इसका क्या बनेगा टाइम डोमेन में? अगर अपने पास पेजेस हैं तो लिख लें। दिस विल बी 1 by 2 डेल्टा ऑफ n minus 3 by 4 डेल्टा ऑफ n minus 1। 3 by 4 नहीं, 3 by 8 बन जाएगा। सो माइनस 3 by 8 डेल्टा ऑफ n minus 1 प्लस 1 by 16 इंटू डेल्टा ऑफ n minus 2। तो आपके पास जो इनवर्स सिस्टम है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या आता है इनवर्स सिस्टम का? दैट इज 1 by 2 डेल्टा ऑफ n minus 3 by 8 डेल्टा ऑफ n minus 1 प्लस 1 by 16 e raised to डेल्टा ऑफ n minus 2। ठीक है, और फिर वेरिफिकेशन के लिए आपने दोनों को टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करना है और फिर उस कन्वोल्यूशन से आपने वेरीफाई करना है कि जो रिजल्टेंट आता है दैट इज इक्वल टू एन इम्पल्स सिग्नल। देन द सिस्टम इज इन्वर्टेबल। अदरवाइज अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो देन द सिस्टम इज नॉन इन्वर्टेबल। क्योंकि मैथमेटिकली डायरेक्टली अगर आप इसको उल्टा कर दें तो दैट विल गिव यू इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो आपको इक्वेशन मिलेगी लेकिन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा
मीन्स टाइम डोमेन इनवर्स। अगर एच आई ऑफ ई रेस पर जे ओमेगा का जो इनवर्स आता है एच आई ऑफ एन, अगर एच आई ऑफ एन आपको मिलता है तो सिस्टम इज इन्वर्टेबल, और अगर एच आई ऑफ एन नहीं मिलता तो सिस्टम इज नॉन इन्वर्टेबल। सर जरा रिपीट कर दे सर। कि इसका इनवर्स क्या होगा, 1/this टर्म। सो 1/this टर्म विल बी बेसिकली डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। तो जब न्यूमरेटर नीचे जाएगा तो इसे इसको डिवाइड बाय 2 करना है। दिस विल बी 1/2 minus 3/8 e raised to power this term plus 1/16 e raised to the power this term। अब इसका इनवर्स क्या बनेगा, मीन्स टाइम डोमेन इनवर्स एच आई ऑफ एन। तो 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2 डेल्टा ऑफ एन माइनस 3/8 ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा का इनवर्स क्या बनता है, डेल्टा ऑफ एन -1। सिमिलरली ई रेस पावर माइनस जे 2 ओमेगा का इनवर्स क्या बनता है, डेल्टा ऑफ एन -2। इसका जो इनवर्स आता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और फिर उसका जो टाइम डोमेन इनवर्स है दैट इज 1/2 डेल्टा ऑफ एन -3/8 डेल्टा ऑफ एन -1 प्लस 1/16 डेल्टा ऑफ एन -2। फिर जब आप उसको एक्चुअल फंक्शन से कन्वॉल्व करेंगे एच ऑफ एन से, ये आपके पास एच ऑफ एन है। अब आपने इसको कन्वॉल्व करना है इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के इनवर्स से, जो आपको अभी बतलाया है कि 1/2 डेल्टा ऑफ एन माइनस समथिंग। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन आपने इनको कन्वॉल्व करना है उसके साथ, दूसरे के इनवर्स के साथ। उसका एंड रिजल्ट अगर आपके पास इम्पल्स फंक्शन आएगा then we system is invertible and you have to verify that thing mathematically. Clear? दोबारा कितने बजे मिलेंगे? दोबारा नहीं मिलना है लैब सर इंशाल्लाह मंडे को। लैब मंडे को मिलेंगे। ये तो पिछली वाली रहती है, अभी वो असाइनमेंट कर रही थी तो इसलिए हम नहीं कर सके, अब वही करेंगे सर। वही क्यों करेंगे, 2 बजे दोबारा है, ठीक है? सर एक्चुअली में ये मेट का कोर्स तो खत्म करें ना, ये तो वैसे भी अभी ये भी बहुत बढ़ गया। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ना, ये जो अभी आपको करवाया है कि इन्वर्टेबल है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, मेमोरी है, सेवेज मेमोरी, ये मिड का कोर्स है ना, और क्या है? मतलब सर वो 2 चैप्टर मतलब उसका तो रिवाइज नहीं करना, वैसे भी इधर हो रहा है ना। हाँ तो यही कह रहा हूँ कि मिड का कोर्स है ना, और क्या है ये? मतलब वो 2 चैप्टर अगर हम उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व ना करें इधर दे के बस ये क्वेश्चन, तो मैं आपसे यही पूछूंगा ना कि ये जो आपने इम्पल्स रिस्पांस सिस्टम गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या वो डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करके दें, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से मुझे उसका इनवर्स फाइंड करके टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पांस दें। इम्पल्स रिस्पांस आपने फाइंड कर लिया सिस्टम इक्वेशन से, इनपुट गिवन है आपको, या तो कन्वॉल्व करके उनका आउटपुट फाइंड करें जो स्लाइड सामने पड़ी हुई है, या उनको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फिर उनका आउटपुट फाइंड करें और आखिर में इन्वर्स ले लें, विच एवर इज प्रेफर्ड एट योर एंड। ठीक है, आपको कन्वोल्यूशन आसान लगती है तो टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करें, आपको कन्वोल्यूशन मुश्किल लगती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करें, उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अगर अप्लाई होता है वो अप्लाई करें, कोई डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज़ होती है, कोई भी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज यूज करके उसका इन्वर्स फाइंड कर दें। सो वट एवर यू प्रेफर, ठीक है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ क्वेश्चन में गिवन होता है अगर ये चीज़ को कन्वॉल्व करके फाइंड करें या इसको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो अगर क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है तो यू हैव टू फॉलो दैट कमांड। नहीं है गिवन, जो आपको शॉर्ट लगता है, अगर आपको लगता है कि जी टाइम कम है और इस कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम आसान है, उस तरह कर लें। अगर आपको लगता है इस लिमिटेड टाइम में कन्वोल्यूशन से ज़्यादा आसान है, आप कन्वोल्यूशन से करें, इट्स अप टू यू।
ठीक है, मेरे पास पेपर्स तो हर क्वेश्चन में ऐसे, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। कुछ लोग उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं जबकि वो कन्वोल्यूशन से बहुत आसानी से होता है, और कुछ लोग उस पर टाइम ज़्यादा लगाते हैं जबकि वो मल्टीप्लिकेशन में आसानी से होता है। सो वट एवर यू प्रेफर, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स आपके पास आ गया तो आपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, इन्वर्टेबल है, नॉन इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है तो उसका इन्वर्स क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसका इन्वर्स टाइम डोमेन में क्या है, जो टाइम डोमेन सिस्टम होगा उसका टाइम डोमेन इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है इन्वर्स सिस्टम का, और फिर मैथमेटिकली उसको वेरीफाई करें। तो वेरिफिकेशन में भी यू हैव टू यूज़ द टाइम डोमेन। एच ऑफ एन को कन्वॉल्व करें एच आई ऑफ एन से, or mathematically verify that it equals to an impulse signal। ये सारे का सारा चैप्टर 2 में यही था। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था, हाउ टू कन्वॉल्व टू फंक्शंस एंड देन द सिस्टम प्रॉपर्टीज, दैट वाज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में दो चीज़ें थी, हाउ टू फाइंड द सिग्नल एनर्जी एंड सिग्नल पावर, वो आप यहाँ पे कर चुके हैं। सिग्नल पीरियोडिक है या सिग्नल ए पीरियोडिक है, हाउ टू फाइंड दैट वो भी आप कर चुके हैं। फिर सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन थी, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, टाइम कंप्रेशन, टाइम एक्सपेंशन, टाइम रिवर्सल, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट दोनों में। तीन चीज़ें हो गई चैप्टर 1 में, विद रेफरेंस टू सिग्नल्स यही कुछ था। और फिर विद रेफरेंस टू सिस्टम 6 प्रॉपर्टीज थी कि वेरीफाई दैट गिवन सिस्टम इज लीनियर, टाइम इनवेरिएंट, मेमोरी लेस, इन्वर्टेबल, स्टेबल, कॉजल। तो अगर आप कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1-2 को किताब से निकाल के फेंक दें और फिर आप मिड का कोर्स नहीं आएगा पेपर में, तो मिड का कोर्स डायरेक्टली आएगा या इनडायरेक्टली आएगा? ठीक है, आएगा ज़रूर। क्लियर? सर सर अगर एडवांस पेपर प्रॉब्लम ऑनलाइन होते हैं, पेपर क्या? पेपर अगर ऑनलाइन होते हैं तो फिर एमसीक्यूज आएंगे कि इसी तरह आएगा जिस तरह आप बता रहे हैं? अभी बता देता हूँ। अगर एमसीक्यूज आएंगे फॉर एग्जांपल, पहले मिड का तो आसान था ना कि केवन सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। किसी ने आपसे ये नहीं कहा था कि फाइंड करें कि उसकी एनर्जी कितनी है और पावर कितनी है। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें ये लिखा हुआ आएगा कि जी इफ़ इट इज़ एन एनर्जी सिग्नल तो ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे, तो इसकी एनर्जी कितनी है। से एज्यूम, तो ऑप्शंस में आपको दूंगा 5.5, 5.6, 5.4, 5.3 कि ताकि आप उसे खुद मैथमेटिकली सॉल्व करें और उसका आंसर दें। तो अगर एक भी सर गलत हो जाए तो आप सबका गलत हो सर पॉइंट का फर्क तो आ सकता है ना? सकता है। अगर आप खुद काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर आपके पास है, गूगल आपके पास है, पूरी दुनिया आपके पास है, तो फिर नहीं गलत आना चाहिए। Then भी leave आता it। है सर। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी ठीक। सर जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है इनके एडवांस प्रॉब्लम्स नहीं करने ना चैप्टर 5 की भी? एडवांस छोड़ दें वो, ठीक है। और सर पेपर जो होगा बेसिक्स विद आंसर्स, और बेसिक्स से ही आएगा और एग्जांपल्स आएंगी ना बस? एग्जाम्पल्स आएंगी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख लें, ठीक है, ये भी जो चेंज करूँगा, ठीक है, और कोफिशिएंट्स की वैल्यूज ही मैं चेंज कर सकता हूँ और वो मैं चेंज करूँगा। ठीक, और कहीं पे कुछ छोटी मोटी ट्रिक आ जाएगी, इनपुट चेंज कर दूंगा। ठीक, सो वट एवर द चेंज विल बी, अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं प्रॉपरली, फिर उस चेंज का जिन्होंने खुद किया है फ़र्क नहीं पड़ेगा। और प्लीज़ डू रिमेंबर, मिड टर्म की तरह कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम नहीं होगा कि आप एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अपने सारे का सारा रिजल्ट कंपेयर करें और उसके बाद फॉरवर्ड करें। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। जिस तरह यहाँ पे मैं शीट्स आपको लगा के दे रहा हूँ एक एक स्टेप सॉल्व करके,
जब आपसे मैं क्वेश्चंस मांगूंगा तो वापस भी आपने मुझे इसी फॉर्मेट में सबमिट कराने होंगे, शीट पे सॉल्व करके विद इन द लिमिटेड टाइम। ठीक है, अभी नहीं पता, अगर क्लास में एग्जाम होते हैं फिर तो इशू नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन होता है तो अभी से क्लियर स्टेटमेंट्स आपको दे दूं। एक ऑप्शन जो ज़ेर गौर चल रहा है, होप सो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, मैं अपने कोर्स में उसको कर लूँ, कि हर क्वेश्चन का अपना टाइम होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड करूँगा, से 20 मिनट का टाइम है तो मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा 20 मिनट, आपके माइक्स ऑन होंगे, इफ़ पॉसिबल वीडियोस भी ऑन होंगी, और विद इन दैट 20 मिनट यू हैव टू सबमिट दैट क्वेश्चन। जो लेट सबमिशंस हैं आइदर दे विल नॉट बी ग्रेडेड और दे विल बी ग्रेडेड विद सम पेनल्टी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अलग टाइम होगा, 20 मिनट है, 30 मिनट है, क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड होगा और वही सारे करेंगे, एंड समटाइम्स अ क्लास नंबर विल बी इंट्रोड्यूस्ड, टाइम लिमिटेड प्लस डिफरेंट। तो वो डिफरेंस ऐसे ही क्रिएट हो